Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5th, health and hygiene. So students, in this chapter we shall learn about the what are the healthy habits and how does we keep our body hygienic. Now students, let us start our chapter 5th, health and hygiene. Get a start, write the ways in which you can keep yourself clean. Now let us start. आपको बताना आप किन तरीकों से अपने आप को क्लीन रख सकते हैं. तो wash your hands. Now students, wash your hands. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बाथ डेली. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कॉम्ब योर हेयर्स डेली. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ट्रिम योर नेल्स. Now students, let's start the chapter. Keeping clean is very important for healthy living. Unclean and dirty places become favorable environments for germs to grow and spread diseases. Whether it is our own body or our surroundings area, we need to maintain cleanliness. A good life is possible only when we follow the following steps. First is hygiene, second is balanced diet, third is exercise, fourth is rest, and fifth is maintaining good posture. बच्चों, अपने आप को साफ रखना एक इम्पॉर्टेंट हेल्दी लिविंग होता है. बच्चों, हमें अपने आप को कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. अनक्लीन डर्टी प्लेसेस जो होते हैं वो जर्म्स के फेवरेबल प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं. हमें अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी आसपास की जगहों की भी साफ सफाई का ध्यान रखना है. क्लीनिनेस यानी उसको मेंटेन करना है. गुड लाइफ तभी पॉसिबल है अगर हम 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट इज हाइजीन, सेकंड इज बैलेंस डाइट, third is exercise, fourth is rest, and fifth is maintaining good posture. Now student, let us start with the hygiene. The conditions and practices that help us to maintain health and prevent the spread of disease are referred to as hygiene. We come into contact with millions of germs and viruses every day. They can linger on our bodies and in some cases they can make us ill. Personal hygiene practices help us and the people around us to prevent illness. These practices also help us feel good and about our appearance. These practices involve जो कंडीशन या प्रैक्टिसेस जो होती हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करती हैं और डिजीज को स्प्रेड होने से बचाती हैं, उसे हम हाइजीन कहते हैं. बच्चों, अगर आप मिलियंस ऑफ जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे आपकी बॉडीज में जर्म्स जो होते इंजेक्ट होते ही वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं. पर्सनल हाइजीन जो होता है हमें भी क्लीन रखता है और हमारे आसपास के लोगों को भी बीमार होने से बचाता है. जो हम प्रैक्टिसेस लेते हैं अपने आप को फील गुड करने के लिए, अपीयरेंस को गुड करने के लिए, बच्चों वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं? रेगुलर बाथिंग, टेक अ बाथ डेली हेल्प अस टू कीप आवर बॉडीज फ्री फ्रॉम odor and germs. You already know that our body sweats out to keep us cool. But the sweat, when comes in contact with dirt and germs, it produces an offensive odor. If the skin is not clean, it may cause some type of allergy and serious skin problems. So it is essential to take regular bath with clean water and good soap. बच्चे, आपको रोज नहाना चाहिए. आपको बॉडी आपकी बैड स्मेल और जर्म फ्री हो जाएगी. आप देखेंगे आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है. अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपकी बॉडी में से बैड स्मेल आएगी. नाउ स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्किन को भी क्लीन रखना है. अगर स्किन क्लीन नहीं होगी तो उसमें स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज हो सकती हैं. आपको रोज साफ पानी से और गुड सोप से नहाना चाहिए. नाउ फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स. बाय फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स वी मीन that hands should be washed with fresh water and soap after doing any work, playing, using toilets, touching pipes, etc. We do most of our work with our hands. So it is obvious that our hands come in direct contact with play items, furniture, tools, machine, books, computers, soil, etc. The germs from these items stick to our hands, and if not washed properly, they could enter in our body with the food we eat with dirty hands. आपको रेगुलरली इंटरवल्स पे हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए. बच्चों, आपको हैंड्स जो है क्लीन वाटर से, गुड सोप से वॉश करने चाहिए. आप खेलते हैं, टॉयलेट्स यूज करते हैं, पेट को टच करते हैं, आप कोई भी चीज करते हैं वो आपके डायरेक्ट हैंड्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं. फर्नीचर को आपने टच करा या मशीन्स को टच करा, बुक्स को टच करा, कंप्यूटर को टच करा, तो आपकी वो सारी डर्ट आपकी हैंड्स में स्टिक हो जाती है. आप उसी डर्टी हैंड से खाना खाते हैं तो वो जर्म्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं. इसलिए आपको हैंड्स वॉश करने चाहिए. कीपिंग हेयर क्लीन. हेयर नीड्स टू बी क्लीन फ्रीक्वेंटली. Dirty hair causes an itchy scalp, dandruff or other infections. It also attracts flies. We need to follow some steps to keep our hair clean. बच्चों, आपको हेयर भी टाइमली क्लीन करते रहने चाहिए. डर्टी हेयर में
स्कैल्प इची हो सकती है, डैंड्रफ हो सकती है, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और लाइस भी आ सकती है। बच्चों आप कैसे अपने हेयर्स को क्लीन कर सकते हैं? मैसेज ऑयल ऑन योर हेयर रेगुलरली, मसाज कर सकते हैं ऑयल से रेगुलरली। नेक्स्ट आता है वॉश हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक विद शैम्पू, आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू से करना चाहिए। वॉश ट्रिम हेयर रेगुलरली, आपको हेयर को ट्रिम करवाते रहना चाहिए। वॉश दी हेयर कॉम रेगुलरली, आपको क्या करना चाहिए? हेयर कॉम को भी रेगुलरली वॉश करना है। यूज स्पेशल शैम्पूज टू ट्रीट डैंड्रफ एंड लाइस, आप स्पेशल शैम्पूज का यूज कर सकते हैं डैंड्रफ या लाइस को ट्रीट करने के लिए। डू नॉट यूज अ कॉम दैट हैज बीन यूज्ड बाय अदर्स, हमें किसी दूसरे पर्सन का कॉम यूज नहीं करना। कॉम हेयर फ्रीक्वेंटली टू कीप इट नीट एंड नाइटी, आपको बच्चों कॉम करते रहना है हेयर को फ्रीक्वेंटली, जिससे कि आपके हेयर्स जो है क्लीन एंड टाइडी लगे। Now next is care of teeth and gums. Teeth and gums need daily care. They should be cleaned twice a day. Brushing teeth help to remove germs and decrease the chances of tooth decay. They also massages the gums and helps to keep them healthy. The tongue is also a storehouse of germs. It should be cleaned with the tongue cleaner. Flossing should be done to remove the germs trapped between the teeth. आपको क्या करना है चाहिए? दांतों और मसूड़ों को साफ रखना है, क्लीन रखना है। दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हैं आप, जिससे कि जर्म्स रिमूव हो जाएं, आपका दांत खराब ना हो, टूट डिके ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, टंग जो होती है स्टोर हाउस कहा जाता है जर्म्स का, तो इसलिए आपको टंग को भी टंग क्लीनर से क्लीन करते रहना चाहिए। फ्लॉसिंग कर सकते हैं जर्म्स को टीथ में से रिमूव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज केयर ऑफ आईज। आवर आईज हेल्प अस टू सी अराउंड एंड अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी. We must take the following good care for them. First is splash eyes with clean water to keep them clean. बच्चों आप आइज के थ्रू आसपास की चीजों को देख पाते हैं। आइज बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आप बच्चों आइज को भी केयर कर सकते हैं, स्प्लैशिंग करके क्लीन वाटर से उसे क्लीन कर सकते हैं। डू नॉट रब आइज विद हैंड्स, यूजुअली स्प्लैशिंग वाटर वॉशेस अवे एनी डर्ट और डस्ट फ्रॉम दी आइज। अगर आपकी आइज में कोई भी डस्ट या डर्ट जाती है तो आप उसे रब नहीं करेंगे, आप स्प्लैश करेंगे, उसे धोएंगे, झपकी मारेंगे उसे साफ पानी से। इन केस ऑफ एनी रेडनेस और इचिंग इन दी आइज कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर मेडिकेशन। अगर आपका आइज में इचिंग हो रही है या रेडनेस आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कंसल्ट के लिए। नेक्स्ट इज केयर ऑफ ईयर्स. Ears should be cleaned with earbuds. Never poke sharp objects into the ear as it could damage your eardrum and may cause loss of hearing. It is important to dry your ears with the tip of a dry towel after taking a bath. बच्चों आप अपनी ईयरबड्स से ईयर्स को क्लीन भी कर सकते हैं। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप अपने ईयर में नहीं डालेंगे, इससे आपके ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, आप लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनाई भी देना बंद हो सकता है। बच्चों आपको ड्राई टॉवल की टिप से अपने नहाते हुए अपने ईयर को क्लीन करना है। नाउ बिकम अ चैम्प, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं? ब्रश ट्वाइस अ डे। आइज की कैसे कर सकते हैं? स्प्लैश विथ क्लीन वाटर। ईयर्स की कैसे कर सकते हैं? क्लीन विद ईयरबड्स। हेयर की कैसे कर सकते हैं? कॉम्ब डेली। नाउ नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. A balanced diet includes food from 5 groups and fulfills all of a person's nutritional needs. Eating a balanced diet helps people maintain good health and reduce their risk of falling ill. Balanced diet में बच्चों 5 टाइप के ग्रुप्स आते हैं फूड के जो हमारे पर्सन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. अगर आप बैलेंस डाइट ईट करते हैं तो आपकी गुड हेल्थ मेंटेन रहेगी और आप कम बीमार होंगे. A balanced diet includes 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट में 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड दैट वी ईट. बच्चों ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं जो फूड हम ईट करते हैं. डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन देम. डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स में डिफरेंट टाइप के प्रोपोर्शंस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स depend on the age, gender and health of a person. Benefit of taking a balanced diet are. बच्चों हम किसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट लेते हैं? अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग. नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट के क्या बेनिफिट्स यानी फायदे होते हैं. इट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी. इट हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. इससे आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी. इट इंक्रीज द कैपेसिटी टू वर्क. बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे. इट इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज. आप कम बीमार होंगे. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द पाई चार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट. ब्रेड, सीरियल्स एंड पोटैटो, fruits and vegetables, milk and dairy products,
meat, fish, and alternatives, food, drinks, and containing fats. Now, students, let's see amazing fact. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to functions properly. It can occur due to many reasons like deficiency of some nutrients in the diet और impairment of the normal functioning of a body part. डिजीज एक abnormal कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें हमारी बॉडी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती कुछ रीजंस की वजह से, या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या कुछ इम्पेयरमेंट आ जाता है हमारी किसी बॉडी पार्ट में. Now next is exercise. In addition to good food, we also need to maintain a particular activity level so that the body remains fit. The muscles of our body become flabby and weak when not used for a long time. Exercise also improves the circulation of blood and oxygen to various parts of the body. Playing in fresh air is an enjoyable experience. बच्चों अगर आप अच्छा खाना खाते हैं वो इनफ नहीं होता, आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी की भी जरूरत होती है तभी आपकी बॉडी फिट रहती है. हमारे मसल्स जो होते हैं फ्लैबी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक हम कोई भी एक्सरसाइज ना करें. एक्सरसाइज हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. बच्चों फ्रेश एयर में आपको सांस लेनी चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए और उसी में आपको खेलना चाहिए. इससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी. Next is rest. Proper rest and regular hours of sleep relax our muscles and help our body function properly. We feel fresh and enthusiastic and regain energy to work again more efficiently. Sleep also gives time to the body for the growth and repair of the body cells. Inadequate sleep results in the improper functioning of the body organs and can make us ill. We should sleep for 6 to 8 hours in a day to remain healthy. बच्चों आपको काम करने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट भी करना है, आपको प्रॉपर आवर्स ऑफ स्लीप भी लेना है जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स करें, आपकी बॉडी जो अच्छे से फंक्शन कर पाए. आप बच्चों फ्रेश महसूस करते हैं, एंथुसियास्टिक महसूस करते हैं, वापस से आपकी एनर्जी रिगेन हो जाती है, रिचार्ज हो जाते हैं जब आप सो के उठते हैं. स्लीप क्या करती है, आपकी बॉडी को टाइम दे देती है, आपकी बॉडी सेल्स को, जिससे वो ग्रो कर सके और रिपेयर कर सके. इनएडिक्वेट स्लीप, अगर आप ढंग से नहीं नींद लेते, नहीं सोते तो आपकी बॉडी इम्प्रॉपर फंक्शन करती है, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते. आपको हेल्दी रखने के लिए आपको रोज 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए. Now next is maintaining good posture. Posture is the position of the body while sitting, standing, moving or lying down. Correct posture keep our bones and joints in proper alignment and prevents strain on our muscles. We must sit and stand keeping our back straight and must walk upright. पोस्चर एक पोजीशन होती है, किस पोजीशन में आप बैठे हैं, चलते हैं, मूव करते हैं या लेटते हैं. करेक्ट पोस्चर बच्चों हमारे बोन्स और जॉइंट्स यानी जो जोड़ होते हैं उन्हें प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं, प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं और आपको दर्द नहीं होता मसल्स में, मांसपेशियों में. आप किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से आप चलते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, आपको सीधा कवर करके चलनी चाहिए. Now maintaining correct posture improves the flexibility of joint. Incorrect posture can lead to a variety of problems such as neck and back pain. अगर बच्चों आप करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे तो आपके जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल होंगे, इनकरेक्ट पोस्चर में बैठेंगे तो आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके नेक में दर्द हो सकता है. नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द इमेज व्हाइल सिटिंग. आप कैसे बैठते हैं. नाउ कीप योर बैक स्ट्रेट एंड अवॉइड स्लाउचिंग. आपको स्ट्रेट बैक के साथ बैठना, स्लाउच नहीं करना. व्हाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े होते हैं स्टैंड टॉल विद योर शोल्डर्स बैक. आप बच्चों सीधे कंधे करके खड़े होंगे. व्हाइल वॉकिंग, आप किस तरीके से चलेंगे, वॉक अपराइट एंड कीप योर हेड अप. आप बिल्कुल सीधा देखते हुए चलेंगे. नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द न्यू वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज हाइजीन. एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिव डिजीज. एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है जिससे हम अपने लिविंग स्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को डिजीज से बचा सकते हैं. बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर राइट प्रोपोर्शन. बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में होते हैं. न्यूट्रिएंट स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नीडेड बाय द बॉडी टू रिमेन हेल्दी. न्यूट्रिएंट वो स्पेशल सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड में होता है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, टेकिंग बाथ रेगुलरली हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम ऑडर एंड जर्म्स. रोज नहाने से बच्चों हमारी बॉडी जो होती है बैड स्मेल से और जर्म से फ्री हो जाती है. मसाज ऑयल ऑन योर हेयर रेगुलरली. आपको हेयर में ऑयल मसाज करनी चाहिए रोज. ट्रिम हेयर रेगुलरली. आपको हेयर कट करने चाहिए रेगुलरली. स्प्लैश आइज विद क्लीन वाटर. आपको आइज वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से. बैलेंस डाइट हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती है. प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप हेल्प आवर बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली. अगर आप प्रॉपर रेस्ट भी करेंगे और प्रॉपर स्लीप लेंगे 6 to 8 आवर्स की, जिससे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज ए. टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. Now first, taking a bath regularly helps to keep our body free from germs and odor. See both A and B is the right. We should sleep for 6 to 8 hours in a day is the right answer. Hands should be washed after
Touching parts using the toilet, C both A and B is the right answer. The tongue should be cleaned with tongue cleaner, C is the right answer. Our muscles relax and the body functions properly after regular hours of sleep. C is the right answer. Now students, next let's do exercise B. Answer in one word or phrase. This practice keeps the body free from allergies and serious skin problems. Bath. Bathing. This practice massage the gums and helps to keep them healthy. Brushing. We should use it to clean our ears. Earbud. The position of the body while standing, sitting, walking, etc. Posture. This practice helps to develop and build up our bones and muscles. Exercise. Now student, let's do exercise C. Fill in the blanks. Massage oil on your hair regularly. Dash help in proper growth of the body. Exercise. Dash should be done to remove the germs trapped in between the teeth. Dental floss. Maintaining correct posture improve the flexibility of joint. We should sleep for 6 to 8 hours in a day to remain healthy. Now let's do exercise D and circle the odd one out. Regular bath, washing hands, brushing teeth. ये क्या होता है, हमारी हाइजीन है. साइकिलिंग मतलब नेक्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स ये हमारे ईटिंग आइटम्स होते हैं. फ्लॉसिंग डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है. वॉकिंग, बैलेंस डाइट, रनिंग, स्विमिंग. वॉकिंग, रनिंग और स्विमिंग ये हमारी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है. बैलेंस डाइट डिफरेंट है. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.